A very good evening, everyone, and a warm welcome. So, you are not here by accident, but you are here because a part of you is done feeling stuck, feeling confused, feeling in dilemma, right? And this workshop from clarity to confidence. This is for you if you have been asking this question to yourself that what's my next step? Okay, and you want to feel sure of yourself even in the tough moments, you want to feel that whatever you are doing, you are damn sure about it. Okay. And if you are tired of overthinking about everything and anything in your life, then this workshop is for you. Okay. So let's take a moment to ground ourselves and close your eyes, everyone, and take a deep breath in. Inhale deeply and exhale slowly. Just whisper to yourself, Hi, Lata. We have just started. So we are grounding ourselves. So just take deep breath लीजिए and exhale. Close your eyes and say to yourself that I am open to clarity and I'm ready for confidence. I'm open to clarity and I am ready for confidence. Because now take a deep breath in and exhale, and you can open your eyes. Because today we are not just talking about confidence. We are going to unlock, wait a second. Sorry for the interruption. So, today in this workshop, we are going to unlock that clarity जो होती है, that leads to action. जब हमें clarity होती है, then we take actions. और जब clarity नहीं होती है, then we are into that loop of overthinking and वो फिर that leads to procrastination. So let's begin this workshop. Okay. Pehle, first we will understand that what is clarity and based on science also and on based on its real life example and spirituality also. Because कुछ people होते हैं ना लोग those who are logical, तो they need proofs कि why is this. ठीक है. तो now let's start with this truth. लोगों को लगता है that they feel कि if they are stuck then they are lazy. They feel if I'm stuck in this thing because I'm not doing work and I'm not doing work because I'm lazy. But this is not the real reason. You are stuck because you don't trust your inner self, your inner knowing. Right? So let me ask you a question. How many of you know that what you should do be doing but keep delaying? आपको पता है कि आपको क्या करना है बट आप उसको डिले करते हो. ऐसा होता है.
ओके, सो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपको लगता है कि आपको पता है क्या करना है लेकिन आप उसको डिले करते हैं, ऐसा होता है आपके साथ? यस और नो? आप टाइप यस। भी कर सकते हैं और आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। यस, राइट, ऐसा होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है दैट यू फील कॉन्फिडेंट समटाइम्स, बट देन एक डाउट आ जाता है माइंड में दैट क्रीप्स इन। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग, बट देन अ स्मॉल वॉइस ऑफ डाउट क्रीप्स इन एंड you think that I should do it or I should not do it. Hi Shilpa. Right. So, and also you worry about making wrong decision, wrong choices, and due to that you make no choice. Right? We think so much that we stop making choices. कि गलत ना हो जाए वो, या फिर what if I do this and it gets wrong, right? So in loop of this, we don't make a choice either. एंड दिस इज नॉट अ यू प्रॉब्लम, मतलब ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये एक वायरिंग का प्रॉब्लम है ब्रेन में। वायरिंग एंड वुंडिंग, बहुत सारे आपने सुना होगा ना, चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं जिसकी लोग हीलिंग लेते हैं। राइट, सो क्लैरिटी इज नॉट अबाउट नोइंग द होल प्लान। क्लैरिटी को ये नहीं कहते कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए। क्लैरिटी इज नॉट दिस। वी थिंक दैट अगर क्लैरिटी इट मीन्स आई नो एवरीथिंग एंड आई डू इट परफेक्टली। नो, एब्सोल्युटली नो। ठीक है, ये सिर्फ इतना होता है, इट्स अबाउट नोइंग दैट what feels right now correct for you and you are trusting that. This is the clarity. क्लैरिटी को सिर्फ इतना सा ही कहते हैं कि वट एवर यू फील ट्रू टू योर सेल्फ एंड इट इज राइट इन द टाइम एंड यू आर ट्रस्टिंग दैट। राइट, अब नाउ वील गो इनटू सम डेटा एंड रिसर्च बेस्ड ऑन साइंस। व्हाट हैपेंस दैट जो हमारा ब्रेन होता है वो वायर्ड होता है फॉर सेफ्टी एंड नॉट फॉर सक्सेस। राइट, तो व्हेन देयर इज टू मच अनसर्टेनिटी होता है ना, तो हमारा जो एमिगडाला होता है, इसको हम फियर सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, वो हाईजैक हो जाता है बाय आवर एक्शंस। और फिर क्या होता है, दैट्स व्हाई ओवर थिंकिंग करते हैं हम लोग। एंड ओवर थिंकिंग फील सेफर टू आवर बॉडी देन द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब हम डिसीजन लेंगे तो वील हैव टू टेक एक्शन, एंड इन ओवर थिंकिंग वी डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन। राइट, सो इसीलिए दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच इज प्रोटेक्टिंग अस। फाइट एंड फ्लाइट मोड सुना होगा अगर आपने तो। राइट, एंड न्यूरो साइंस जो होती है, इट शोज क्लियरली दैट क्लैरिटी अगर आपको है देन इट रिड्यूसेस योर एंजाइटी बाय calming डाउन योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ब्रेन में 4 पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल, प्री फ्रंटल लोब्स होते हैं। राइट, तो जब क्लैरिटी आ जाती है तो इट रिड्यूसेस द एंजाइटी, क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती है वी ओवर थिंक एंड इट गेट्स अस एंजाइटी। राइट, और एक स्टडी हुई थी 2021 में बाय हार्वर्ड। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, पीपल विद क्लैरिटी, द पीपल हु हैड द क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज एंड गोल्स, they were 70% more likely to take consistent actions. Can you imagine 70%? Right, so this is the power of the clarity when we have the clarity. And also clarity brings us peace, because वो एक चीज रिमूव कर देता है विच इज डिसीजन फटीक। कि हमें दिन भर में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जिनमें से आधे रिपीटेड होते हैं, एंड एवरी टाइम यू टेक अ डिसीजन, कीप ऑन टेकिंग न्यू डिसीजन, तो फिर वो डिसीजन फटीक हो जाता है। तो इसके लिए सम थिंग्स यू नीड टू डेलीगेट, यू नीड टू पुट ऑन ऑटो पायलट, राइट, सो दैट यू कैन सेव योर एनर्जी। अब ये तो थी साइंस की बात। नाउ वी विल कम टू स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअलिटी क्या कहता है क्लैरिटी के बारे में। वो इट सेज दैट यू आर नॉट लॉस्ट बट यू आर इनवाइटेड इनवर्ड्स। मतलब जैसे हम हर चीज बाहर देखते हैं, एवरीथिंग आउटसाइड, वी हैव टू गो इनसाइड आवरसेल्फ। स्पिरिचुअलिटी में क्लैरिटी को ये बोलते हैं। राइट, आपने सुना होगा धर्मा एंड कर्मा। तो योर धर्मा विच इज योर सोल पाथ, इट गेट्स लाउडर व्हेन यू गेट क्लैरिटी,
एंड वो तब होता है जब यू गेट क्वाइटर इनसाइड एंड देन यू गो लाउडर आउटसाइड। जब हम अपने कर्मा में क्वाइटर होते हैं देन वी गो आउट लाउड इन आवर धर्म, राइट? सो कर्मा इज व्हाट यू आर कैरिंग एंड धर्मा इज वेयर यू आर गोइंग, व्हाट इज योर सोल पाथ, फॉर व्हाट यू आर ऑन दिस अर्थ टू लिव योर पर्पस, राइट? लेकिन हाउ डू यू मूव, कैसे मूव करेंगे हम लोग? दैट्स वेयर यू नीड द क्लैरिटी एंड द कॉन्फिडेंस, दे बोथ कम एंड बोथ कैन बी लर्नड। आपने सीखा है तो यू कैन अनलर्न एंड रीलर्न ऑल्सो, राइट? क्योंकि होता है क्या है, जैसे एग्जाम्पल बताऊं कि थिंक ऑफ अ टाइम जैसे व्हेन यू जस्ट न्यू समथिंग वाज राइट। वो आपका जॉब हो सकता है, कोई एक डिसीजन हो सकता है आपका, कोई पर्सन हो सकता है, दैट क्लैरिटी, ठीक है? आपको पता है कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, लेकिन नॉट ऑलवेज वी नीड टू बी लॉजिकल, we need to be deeply aligned with ourselves, right? Without clarity you get stuck in analysis paralysis में हम लोग stuck रहते हैं। लेकिन जब clarity आ जाती है then we feel light, we feel focused and we feel free, because then we take actions and we get the results। Okay, any questions till now? किसी के कुछ? ओके, सो क्लैरिटी इज नॉट, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि एक परफेक्ट प्लान, वी से ना कि दिस दिस दीज आर द स्टेप्स एंड दिस इज द प्लान, ये क्लैरिटी नहीं है। नोइंग एवरीथिंग इज ऑल्सो नॉट क्लैरिटी। वेटिंग फ्रॉम द साइंस, फॉर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स की हाँ यूनिवर्स कुछ बताएगा, भगवान कुछ बताएंगे तब मैं कुछ काम करूँ, दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्लैरिटी। लेकिन क्लैरिटी होती क्या है? इट इज a sense of knowing that what feels right in this moment, in this moment में मुझे क्लैरिटी है कि आई हैव टू डू माई वर्कशॉप एट 2:30 PM, ठीक है? तो दिस इज द क्लैरिटी कि वट एवर यू आर डूइंग आपको यू आर फीलिंग राइट अबाउट इट, ठीक है? एंड द एबिलिटी टू हियर योर इंट्यूशन अगेन, व्हेन वी काम आवरसेल्व्स तो हम अपने इंट्यूटिव साइड से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? ट्रस्टिंग व्हाट्स कमिंग इनसाइड योर माइंड and not your fears. So this was everything about clarity. So I hope you all got the clarity about this clarity, right? And now we will move to the confidence part. So, what is confidence? What's its behavior? Everything. So confidence को लोग सोचते हैं कि जैसे being loud, हैविंग नो फियर, कि कॉन्फिडेंट है तो उसको कोई फियर नहीं होगा, ऑलवेज श्योर कि हाँ आई एम वेरी श्योर फॉर दिस थिंग और दैट थिंग और दिस डिसीजन और दैट डिसीजन, राइट? ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट? बट कॉन्फिडेंस होता है क्या है? यू आर शोइंग अप इवन वेन यू आर शेकिंग। मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई हैव टू डू माई वर्कशॉप एट 3 PM एवरी सैटरडे एंड आई एम शोइंग फॉर इट अगेन एंड अगेन। फर्स्ट टाइम जब व्हेन आई डिड दिस तो आई वाज लिटिल नर्वस ऑल्सो, मुझे लग रहा था कैसे करूंगी क्या करूंगी, बट स्टिल आई डिड। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस विच आई हैड, ठीक है? आई एम एक्टिंग ऑन माई ट्रूथ again and again every week I am doing this workshop and by doing this I am becoming pro at this, ठीक है? और कॉन्फिडेंस जो कहते हैं ना लोग कि कोई व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू डोंट फियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस बट इट्स अबाउट बीइंग विलिंग टू डू थिंग्स, राइट? बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं डेली every week I'll be showing ourselves, right, take action in spite of fear is confidence. It's about the willingness that I have to show every week again and again. ओके, एंड इसमें भी साइंस, व्हाट साइंस क्या कहती है कॉन्फिडेंस के बारे में? दैट कॉन्फिडेंस इज एक स्किल है विच एवरी वन कैन लर्न, ओके? एंड ये कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है कॉन्फिडेंस। ये स्टडी है एक जर्नल की इन 2010 में जो हुई थी, राइट? और इट बिल्ड्स एवरी टाइम यू टेक एनी स्मॉल एक्शन यू आर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। आपने कुछ कहा कि मुझे ये करना है, आई विल डू दिस, और व्हेन यू डिड दैट वर्क वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अरे वाह मैंने तो कर लिया, राइट? डिस्पाइट द फियर कि आ रहा है माइंड में कि कैसे करूंगी, आई एम वेरी नर्वस, आई एम एंशियस, बट स्टिल यू डिड दैट, दिस इज द कॉन्फिडेंस, राइट? और व्हेन यू डू टेक दिस स्मॉल स्मॉल एक्शंस, जैसे आपने बोला कि मुझे जिम जाना है एंड आई वांट टू बी फिट, ठीक है? यू सेड टुडे एंड आज ही शाम को आप जिम चले गए,
You will feel confident the next day. And this small step, daily, it will build your consistency muscle. ओके, इससे एक चीज और होती है, इट एक्टिवेट्स योर डोपामीन सिस्टम। डोपामीन हमें पता है, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो डोपामीन रिलीज होता है हमारे बॉडी में, राइट? एंड दिस इज द वे ऑफ आवर बॉडी टू रिवॉर्ड अस इमोशनली एंड केमिकली, राइट? सो दिस वाज अबाउट कॉन्फिडेंस। इसका एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम आई थिंक व्हेन आई स्पोक टू अ वुमेन, नहीं, जब, हाँ, व्हेन फर्स्ट टाइम आई डिड माय वर्कशॉप webinar online, I thought ki how will I conduct it? I was very scared. But after doing it, I felt very confident. I felt very powerful. And this is how confidence works. It grows when you use it. जैसे बोलते हैं ना, when you keep on using your skill, they sharpen, right? तो confidence का भी ऐसे ही है. Okay. अब नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी ऑन क्लैरिटी। अब जैसे भगवत गीता की एग्जाम्पल देती हूँ। इन भगवत गीता यू मस्ट हैव हर्ड दैट कृष्णा टेल्स अर्जुन टू एक्ट फ्रॉम क्लैरिटी ऑफ धर्मा, जो उनका पर्पस था, एंड नॉट फ्रॉम द कंफ्यूजन ऑफ द माइंड। तभी उन्होंने उनको पूरी गीता सुनाई थी, राइट? और उपनिषद जो हमारे यहाँ, उनमें भी ऐसा मेंशन है कि यू आर व्हाट यू डीप डाउन डिजायर दैट you are. Right. So now we will do an activity for this clarity. Okay. So everyone, please take your pen and paper with you. और किसी के कोई questions हो तो you can ask in the chat box also. Okay. So what you need to write down in your journal is, what is the one area in my life in which I feel the most confused? What is that area? डोंट जज योर सेल्फ, डोंट ओवर थिंक ऑन दिस, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। कोई भी एरिया हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकते हैं, करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, मदरहुड हो सकता है, फैमिली हो सकता है, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। यू कैन टेक 2-3 मिनट्स। हाँ, क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया ऐसा है वेयर यू फील द मोस्ट कंफ्यूज्ड। What is the one area in your life where you feel the most confused? You can write this down. Where and how to find clear. Yes, Shilpa.
I hope all of you have written down message. लता, आपने लिख लिया? हेल्थ एंड फिजिकल सुटेबल फॉर द बिजनेस। ओके, ठीक है। अब ये क्लैरिटी मिल गई आपको कि कहाँ पे यू नीड टू, मतलब ये एक एरिया है जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए, वेयर यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो व्हाट वन एक्शन यू कैन टेक सो दैट यू फील अलाइंड विद योर सेल्फ। क्या करना है आपको? तीन प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं अभी दूंगी आपको, ठीक है। पहला है, और इसमें लॉजिक नहीं लगाना है अपना, बस लिसन वॉट एवर कम्स फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है। कि इफ आई फुली ट्रस्टेड माई सेल्फ वॉट वुड आई बी डूइंग नेक्स्ट। मतलब अगर आप अपने आप को फुली ट्रस्ट कर रहे हो, देन व्हाट वुड यू बी डूइंग नेक्स्ट। एक नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा आपकी हेल्थ में या फिर आपके करियर में, कि आप जो कर रहे हो वो सही है। देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, वो आपको लिखना है। फर्स्ट यू गॉट द क्लैरिटी, नाउ यू नीड टू राइट दिस डाउन। डू मार्केटिंग, राइट शिल्पा। अब लता जी आप भी लिख सकते हो कि व्हाट यू वांट। क्या? प्रोस्पेक्टिव, राइट। सेकेंड प्रॉम्प्ट है कि व्हाट हैव यू बीन अवॉइडिंग आउट ऑफ फियर ऑफ जजमेंट। क्या एक ऐसी चीज है जो आप नहीं कर रहे हो ओनली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जजमेंट, कि अगर मैं ये करूंगी तो व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल माय फैमिली से, व्हाट विल माय फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, एनीवन इन द वर्ल्ड वुड से। सेकेंड प्रॉम्प्ट इज दिस। अब इसका आंसर भी आपको करना है। कौन सा एरिया है जो आप अवॉइड कर रहे हो मार्केटिंग करने में या प्रोस्पेक्टिंग करने में, आप क्या अवॉइड कर रहे हो? एंड आफ्टर राइटिंग दिस डाउन, फिर एक तीसरा प्रॉम्प्ट भी है जहां पे यू नीड टू मेंशन दैट वेयर इन माय लाइफ अप्रोचिंग न्यू पीपल। हाँ, यहाँ पे यू आर हैव अ फियर ऑफ जजमेंट, राइट। जैसे हम लीड जनरेशन जब करते हैं, नॉट वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी, एब्सोल्यूट, ठीक है। दीज आर योर फियर्स। And the third prompt is that where in my life do I feel a pull even if it doesn't make any sense। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि आई एम, मैं उसकी तरफ, फैमिली, राइट। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो दैट डजेंट मेक सेंस। दे विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर डूइंग समथिंग। ये हमारे खुद के इनर बिलीव्स होते हैं विच वी पुट ऑन अदर्स, राइट। यस। Please repeat the question, this last one. हाँ, क्वेश्चन ये था कि इन माई लाइफ, वेयर इन माई लाइफ डू आई फील अ पुल। मतलब मुझे खिंचाव लगता है इवन इफ इट डजेंट मेक एनी सेंस। मुझे लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे जाना ना सही नहीं, इस इंसान से बात करना सही नहीं, ये कहाँ ही मेरा प्रोग्राम लेगी, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। बट दैट डजेंट हैव एनी सेंस। आपको नहीं पता है कि कौन आपका प्रोस्पेक्ट है या कौन आपका लीड, राइट। एंड आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज आई होप you get the clarity. Strangers, right. How did you feel after doing the activity? कैसा लग रहा है आपको ये सब लिखने के बाद में? और
हाँ, थैंक यू शिल्पा। नाइस, वेरी गुड लता। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि दीज आर, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम अवॉइड कर देते हैं, एंड देन वी से कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी वांट टू डू, फीलिंग हैप्पी ऑन द राइट वे। राइट। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? इट कम्स और इट बिल्ड्स थ्रू प्रैक्टिस ओनली। इसका कोई शॉर्टकट, कुछ फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कोई दवाई है मैंने दे दी, आपने पी लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। यू नीड टू प्रैक्टिस इट डेली डेली डेली। जो हमारा डेली रूटीन होता है उसमें भी वी कैन प्रैक्टिस। अब जैसे फॉर अस लेडीज और होम मेकर्स क्या होता है, खाना बनाने का होता है कि व्हाट विल बी द डिनर टुनाइट, राइट? तो उसमें भी यू नीड टू वेरी स्पेसिफिक, अच्छा आज ये बनना है, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट। ठीक है। टीचर के लिए हो सकता है व्हेन शी इज टीचिंग किड्स, आई हैव टू टीच विद दिस मेथड, जो जो भी वे है, लाइक दैट। ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग मार्केटिंग या व्हेन यू आर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, तो आज मुझे 10 लोगों से बात करनी है, आई नीड टू कनेक्ट विद देम। ठीक है। ये क्या आपने 10 लोग से ही बात करी बट आपने करा, देन आफ्टर डूइंग दैट यू फील कॉन्फिडेंट, राइट? ऐसे करके धीरे धीरे यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस थ्रू प्रैक्टिस। Okay, so I want you to write this down in your notebook, that one small thing, जैसे अभी आपने लिखा पूरा तो अभी आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली, तो अभी you need to write it down कि क्या एक स्टेप है which you need to take daily to be confident. So कौन सी that वो एक small thing है that you have been avoiding out of fear? अभी आपने लिखा ना, what you are avoiding, वो आपको लिखना है क्या है, एंड देन व्हाट इज द स्मॉल स्टेप, उस जो आपने लिखा था ना उसके लिए आप, क्या एक स्मॉल स्टेप है जो आप डेली लोगे टुवर्ड्स इट? जैसे आपने मार्केटिंग या प्रोस्पेक्टिंग लिखी तो उसके तरफ व्हाट वुड बी योर स्मॉलेस्ट स्टेप डेली विच यू टेक कंसिस्टेंटली फॉर इट? यू नीड टू राइट इट डाउन। चलो, 30 स्पेंड्स ऑन, हाँ, 30 मिनट्स स्पेंड टू लर्निंग टेक्नोलॉजी। वेरी गुड शिल्पा। और 30 मिनट्स इसलिए भी अच्छा है बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इट्स स्मॉल, ठीक है, मैनेजेबल टाइम है। अभी यही अगर आप 1 आवर या 2 आवर लिख दोगे तो योर माइंड विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्टोरीज पर, कई स्टोरीज बनाएगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस ट्रैप में फंस जाओगे। तो इसलिए छोटा टाइम, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, राइट? कि ठीक है, जब 15 मिनट की तो बात है, कर लेंगे 15 मिनट, 10 लोग को मैसेज कर दूंगी मैं अपने प्रोग्राम के बारे में, हाउ टू, या मेरे साथ क्लैरिटी कॉल बुक कर ले। ठीक है। ऐसे, तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस। मैसेज कर दिया मैंने 10 लोग को, एक वीडियो पोस्ट कर दी सोशल मीडिया पे, या किसी को नो कह दिया, नो कहना भी इज बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, राइट? क्योंकि हमारी इतनी यस कहने की आदत होती है दैट व्हेन वी से नो वी फील गिल्टी, राइट? सो आपको एक वो बना लेना है, एक मंत्रा है कि डेली आपको एक नो तो बोलनी है किसी ना किसी। ये आप लिख लीजिए अपने डायरी या जर्नल में, दैट वन नो यू हैव टू से टू एनी थ्रू आउट द डे। किसी से हेल्प के लिए पूछना है कि अच्छा ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू डू दिस वर्क, या इस काम की वजह से आप लोगों को मैसेज नहीं कर पा रहे हो, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? आई एम मास्टर इन सेइंग नो, वेरी गुड शिल्पा। ठीक है। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम पीपल, बिकॉज नो स्टेप इज टू स्मॉल, एक्शन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। आप एक्शन लेते जाओगे, आप कॉन्फिडेंट बनते जाओ, राइट? क्योंकि द थिंग इज कि हम जब किसी को देखते हैं, किसी कोच को, या जैसे लता जी आप जो वर्क विच यू आर डूइंग, वहां पे जब हम लोगों को देखते हैं ना जो हायर पोजीशंस पे हैं, तो हमें लगता है कि वाह ये पर्सन यहाँ पहुंच गया, बट उसके पीछे का जो हार्ड वर्क होता है ना, वो जो स्मॉल स्मॉल एक्शंस जो उन्होंने 10 साल से पहले लिए या 5 साल से लिए, 4 साल से लिए, देन दे आर हियर। तो जो वेन यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद देम, तो आप उनके फर्स्ट ईयर से कंपेयर करिए, ना कि 10th ईयर, राइट?
एंड यहीं पर रोल आता है मेंटर और गाइड। ठीक है, अब मेंटर आपकी लाइफ में हो या कोच हो, कोई भी हो, ठीक है, बिकॉज क्लैरिटी इज योर इनर वॉइस। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस को एक आउटर मिरर चाहिए होता है। देयर शुड बी समवन टू रिफ्लेक्ट योर पावर व्हेन यू फॉरगेट। जैसे अभी शिल्पा यू केम टू मी, ठीक है, हमारी उस दिन बात हुई, तो मैंने कहा ये चीजें हैं, व्हेन वी विल कनेक्ट वन टू वन ऑल्सो, तो फिर मैं आपको बताऊं कि हाँ ये चीजें आपकी और अच्छी हैं जो आप और इनहेंस कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो, राइट। अभी मेरी एक क्लाइंट है, तो उसको क्या है ना, अभी तक शी वॉज नॉट इन टू दिस पोस्टिंग एंड सोशल मीडिया में नहीं, लेकिन अभी वो कर रही है तो उसको वो अच्छा लग रहा है, राइट। तो वेन यू आर विद अ मेंटर और अ गाइड और अ कोच, एनीवन, वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी जो पावर्स, वो बताने में, राइट, जो आप भूल गए हो कि पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, राइट, दिस इज द रोल ऑफ अ मेंटर, व्हाट दे डू। ठीक है, एंड ऑल्सो दे होल्ड योर विजन। जैसे आपने मुझे बताया कि योर विजन इज टू सर्व 100 पीपल। ठीक है, यू नीड टू स्टार्ट योर बैच इन अक्टूबर। तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ डाउट आएगा, देन आई एम ऑलवेज देयर कि हाँ यू डोंट गेट इनटू दैट। ठीक है, आना ठीक है, बट उसी में रहना नहीं, उससे बाहर निकल के आना है कि नहीं आई कैन डू इट। आपके वाई को रिमाइंड कराते दैट दिस इज योर वाई, इसके लिए आपको काम करना है। ठीक है, होता है नहीं, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, राइट। सो व्हेन यू हैव अ मेंटर, दे कीप ऑन रिमाइंडिंग यू द वाई, दैट वाई यू आर हियर, क्यों है आप। ठीक है, आपका जो टाइम लाइन होता है ना, जैसे जो जर्नी मैंने 2 साल लगे मुझे, वो जर्नी मैं आपकी 6 मंथ में करवा सकती हूँ, 3 मंथ्स में कवर करवा सकती हूँ। ठीक है, दैट्स वाई यू नीड अ मेंटर, आई कैन हेल्प यू फ्रॉम दिस। ओके, अब जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत बड़े बड़े जो एथलीट्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं या लीडर्स होते हैं, ठीक है, दे ऑल हैव कोचेस, सबके गाइड्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको अकेले ये खुद क्यों ही करना है। ठीक है, हैव अ मेंटर बाय योर साइड, और फिर यू कैन टेक देयर गाइडेंस, उनका सपोर्ट, उनकी हैंड होल्डिंग, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेके यू कैन ग्रो एंड रीच वेयर यू वांट टू रीच। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हमें पता है अंदर से आती, कम्स फ्रॉम विद इन। बट समटाइम्स हमारे आसपास का जो नॉइज होता है ना, वह हमारा एनवायरनमेंट जो है, वो इतना ज्यादा लाउड होता है ना कि वी आर नॉट एबल टू हियर दैट। ठीक है, और कॉन्फिडेंस तो तभी आता है जब हम काम करते हैं, बिकॉज फियर जो है ना, वो हमें अक्सर स्टॉप करता है। तो व्हेन यू कीप ऑन टेकिंग एक्शंस, देन यू बिकम कॉन्फिडेंट एंड द फियर गोज आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, अ मेंटर हेल्प्स यू गेट योर वॉइस वेरी क्लियरली, दे बिलीव इन यू, दे सपोर्ट यू। ठीक है, आपका कंफ्यूजन जो होता है वो कम करते हैं, एंड दे एक्सेलरेट योर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा ना, तो उनके स्पिरिचुअल एडवाइजर हैं। ठीक है, ओपरा है, उनके भी एक हैं मेंटोर हैं, माया करके आई थिंक नाम है उनका कुछ ऐसे। ठीक है, यू कैन गूगल दैट ऑल्सो। तो आपको ये अकेले नहीं करना है, मेंटर रिफ्लेक्ट्स योर पावर अंटिल यू रिमेम्बर इट योरसेल्फ। ओके, सो अब आप लोग को कोई ज्यादा, यू डोंट नीड मोर नॉलेज या ज्ञान बहुत ज्यादा, यू नीड जस्ट इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज इंफॉर्मेशन सबके पास बहुत है, यूट्यूब पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बट यू नीड अ पर्सन हु हेल्प्स यू इम्प्लीमेंट दैट इंफॉर्मेशन, राइट। सो दिस वर्कशॉप was for clarity and confidence, and if you are ready and you want to stop second guessing yourself, then I want to invite you for a one-to-one clarity call with me. And in this is a free clarity call, and in this clarity call, what you will do is that you will uncover what's holding you back, find your direction, and also create a simple steps towards your dream, your goal. Okay, so I'll share my calendarly in the group, and you can book a clarity call with me. Any questions or anything you want to share? कैसा लगा वर्कशॉप, क्या एक्सपीरियंस था, प्लीज शेयर। आप चैट में टाइप कर, इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू लता।
बिकॉज हम लोग जब दूसरे को देखते हैं ना, तो वी थिंक दैट वी शुड बी लाइक देम. यू डोंट नीड टू बिकम समवन एल्स. यू जस्ट नीड टू बिकम योरसेल्फ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंट. ओके. चैट में आपने टाइप किया है. इट वाज वेरी नाइस किड्स. थैंक यू सो मच शिल्पा. Thank you so much, Lata. And thank you so much for joining this workshop. And we will meet next Saturday at 3 p.m. again with a new topic. Till then, take care, everyone, and bye bye. कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? Okay. Then I am ending the session. ठीक है? Bye. Take care.